Hey guys, welcome to Fit India Contributor Campaign podcast number 3. And today we have a very special guest with us. He's the founder of GrowFi. And beyond that, if we talk about our relationship, it's been around 1.3 years that we one and a are half years. that you're training at the gym. And वत्सल मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके बारे में आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स मतलब द काइंड ऑफ अरे हंस क्यों रहे हो सही में the kind of learnings that I take only from observing you, the way you talk, the way you present yourself, your mindset, आपका calmness, कितना कुछ है जो मैं आपसे बिना बताए आपको बिना बताए आपसे सीखते रहता हूँ. So I'm really looking forward to just have a conversation with you and genuinely बताओ. So this is more like जिनको जो सुनेंगे उनको हेल्प मिलेगा but this is more like a lot of learning that I want to take from you. कभी ऐसा अपना हम हमेशा जिम में मिलते तो ऐसा ज़्यादा आपसे बात करने का मौका मिला नहीं. दिस इज माई पर्सनल दैट इज वेल अपॉर्चुनिटी कि आपसे जितना मैं सीख पाऊँ समझ पाऊँ. एंड इफ लेट्स स्टार्ट जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, लेट्स स्टार्ट बाय यू इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू द वर्ल्ड. For sure. Hi guys, this is Vatsal here, and as Puneet rightly mentioned, I've recently started a venture called GrowFi. Now I don't know why he keeps on admiring me. The pleasure's mine. But बहुत सारी चीज़ें हैं जो you get to learn as a human as you progress in life. जैसे पुनीत ने बोला कि हम लोग बहुत रेयरली बात करते हैं, but that's the reality of life now. He has his own business to, you have your own business to cater to. So I don't think we get a lot of time to connect. But one of the things that I like about you is in a short span of time आपको पता चल जाता है किस इंसान से आपको क्या पिकअप करना है. Now humans generally take a lot of time in terms of years to understand कि मुझे सामने वाले का क्या अच्छा ही लेना चाहिए. That's the biggest trait you've got and you should celebrate that. Even if I talk about me as a human, the most time that I've spent in life is only picking up negative things about people. मैं ये सोचता रहता था यार ये आदमी ने ये गलत किया, इसे नहीं करना चाहिए था, so on and so forth. But with time I have realized, not that मेरी एज ज़्यादा है, but with time I have realized कि you end up spending a lot of mental energy अगर आप किसी और इंसान का negative trait लेते हो. And the worst part or the best part is God will always put you in situations जहाँ पे the more you try to pick positive of someone, वो भगवान उसके अंदर रह के नेगेटिविटी ही डालेगा. And ये मैं real life example दे रहा हूँ. Right. And that's how actually I got this idea of starting my business. Now if you ask me कि यार आपने ऐसा क्यों किया, 10-11 साल I did my job. And by the way, professionally I am someone else. I completed my course into aviation. So the biggest question mark that lies on my resume is that typical 3 Idiots का dialogue, भाई ये क्या करके क्या किया है. Correct. So for people who don't know, I am a professional aircraft maintenance engineer. तो अगर मैं मेरी जिद पूरी करता तो शायद आज प्लेन के अंदर घुस के स्क्रू ही टाइट करता होता जो मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, विथ नो डिसरिगार्ड्स टू देम. बट विथ टाइम आई रियलाइज यार ये मुझे नहीं चाहिए लाइफ में. I met someone in college, a very good friend, who is also my business partner now. He always instilled this thought in me, कुछ करना है तो खुद के लिए कर. Like life में तू हमेशा 30th of a month पे depend मत रहना. क्या बात. And that's when things changed. But honestly, I am from a very humble background. I wouldn't sell fake stories. इतना कुछ नहीं था, but I never had complaints. एक चीज़ था that I wanted to make sure whatever my parents want, I should be able to give it to them in the blink of an eye. Simple. Absolutely. Period. Like typical trait of a guy. Absolutely. Who is inclined towards parents. Correct. And having seen those times of difficulties, I had decided यार I cannot work in a job environment where you don't know कि यार कल उठ के क्या होगा. If you see around the world today, people are literally insecure about their jobs. तो वहीं से मैंने मेरा पिवट चालू किया. एंड द बिगेस्ट गिफ्ट आई गॉट व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस. नाउ दिस इज अ वेरी ट्रू स्टोरी. 2024 इज व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस. 24 April में I launched. 24 October I get a legal notice worth 50 lakhs. Now this is something I'm opening up in front of you. From people who've been in this industry for years. They were so afraid
of the fact that I'm starting this because they knew I worked for them for 10-12 years. I had driven business for them, and when it was my turn to drive business for myself, दिवाली का टाइम था, मुझे भी याद है. And I landed in Bangalore. The moment I took the phone off airplane mode और मैंने नेट चालू किया, first notification email खोला, notice, and I was awestruck. I was like, 50 lakh. I had my fiance besides me and I showed the message to her, and initially if you ask me setback था, हाँ था. कोई भी 27-28 साल के बंदे को आप पूछो अगर 50 लाख का कोई नोटिस भेजेगा तो क्या हालत होगी. करेक्ट. नो मैटर हाउ गुड यू आर इन लिफ्टिंग वेट्स, you cannot lift that weight. The statement she told me in the aircraft, there was an announcement going on about baggage belt. I remember that. उसने एक ही चीज बोली, तूने गलत नहीं किया, छोड़ दे. 50 लाख, we are not even liable to pay 5 rupees. And we are 1.5 year down the line now. They are still trying to extort that money from me, and by the grace of God, business has gone threefolds. So that's what has taught me in life कि यार आपको अगर कुछ करना है, just be resilient. जिद्दी खत्म. Like if you've gone into the waters, try testing it. आप पानी में जंप मारने से पहले नहीं बोल सकते मैं स्विम नहीं कर पाऊंगा. करेक्ट. Whenever I think about the business, बहुत सारे टाइम ऐसा आया है जब I have not been able to sleep in the night because of the thought यार नहीं चला तो क्या, लॉस हो गया तो क्या. And I have won losses, that's fine. But then daddy always tells me one thing, यार पानी में जंप मारना तो पड़ेगा. What if you have no option? मान लो आपके सामने सिर्फ पानी और आपको स्विम करके ही जाना है, वरना यू आर डेड. Will you as a human jump on it? Irrespective of the fact that you know or do not know swimming. क्या लगता है आपको? अभी स्विमिंग नहीं आता है वो तो करना है, वो करना है भी. Exactly, that's what drove me always. ये करना ही पड़ेगा. And in this fast paced world bro, I'll tell you, अगर आप नहीं करोगे तो you are long lost in the queue. So वही है, in the small name Growfy there's a very big story. And I haven't even told this to a lot of my relatives. I mean, because I find this platform good and I know people of a very young age follow you. Correct. They should know कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा तो फेस करो. Lovely. नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम आने वाला है. अरे करेक्ट. उससे अच्छा फेस करो, हैव द करेज टू फाइट. सही. And the best part that your forum, this Pure Calisthenics, has played, I've always told your coaches as well, the best part that you guys have played is you all have taught us to be resilient. I remember a time जब हमने फर्स्ट टाइम चालू किया था, मैं 1 वीक आया था, बाद में 2 महीना गायब. Because I couldn't bear the pain. What do you call in your language? Soreness. And I remember that time मैं बेड पे हूँ, एक हाथ पे मम्मी है, एक हाथ पे आंटी है, दोनों को मैंने आइस क्यूब पैक दिया है, भाई आप लगाओ. एंड मम्मी ने मुझे हिंदी में, प्लेन हिंदी लैंग्वेज में बोला, नहीं होता तो छोड़ना भाई, क्यों कर रहा है, क्यों वजन उठाना है. From that day to today, I'm not bragging, to whatever extent I've reached. Even the coaches admire, no, you've reached to a level where you did not even think of. So not just bodybuilding, but exercise teaches you to be resilient. एक पुशअप नहीं हुआ तो क्या, दूसरा तो करना ही है. करेक्ट. स्टेप बाय स्टेप जाते, बहुत कुछ शेयर हो गया है. एक एक पॉइंट्स पकड़ के आई जस्ट ट्राई टू. ठीक है. यू टॉक्ड अबाउट फाइंडिंग अ को-फाउंडर, एंड do you think that process is same like doing a marriage? क्योंकि that guy is going to affect your business and your business is going to affect your life eventually. So अगर co-founder का बात करें, how does, क्योंकि I am doing my business alone and I genuinely desperately feel कि पूरा अकेला आदमी नहीं संभाल सकता है. When you want to scale, you want to grow, you need someone with same values, with same morals, same vision, और उसको कहीं ना कहीं दिखता हो कि हम दोनों मिलके कुछ कर सकते हैं. So what is the journey of finding a co-founder, और वो क्या होता है, कैसे अपने को. यार ऐसा कोई जर्नी नहीं होता. लाइक आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे लाइफ में आगे बिजनेस करना है. आई बिलीव इन गॉड, सो आई थॉट दैट वाज द राइट टाइम व्हेन ही प्लांटेड दैट सीड इनटू माय थॉट्स. तो वो बंदा आया रैंडमली, उसने मुझे बोला, ही इज एल्डर टू मी, ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग दैट आई फाइंड सम स्पार्क इन यू and I think we should do something in life. वो बात था 2013. Okay. हमने बिजनेस चालू किया 24, which was 11 years. Wow. So it मतलब वो नर्चर, रिलेशनशिप को नर्चर करते गए फिर वो बेस बनता है, फिर कुछ होता. Okay, lovely. So there is no preset time. Right. But always be open. Right. But sir, as an entrepreneur or as someone who's growing into a business, what do you think is the
is the change that a human goes through. क्योंकि मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूँ and I've drastically changed my personality. वो लोगों से मिलके बातचीत करके when you have to present yourself out there वो change होता ही है. So what do you think, what areas of life does a business, opens up? और क्या क्या अंदर से बाहर आता है, कैसे बाहर आता है? Can you just smallly, shortly, can you share that? So if you talk about change in life or change in the way, the one word I would say is your lens changes. So when I say lens, it's all about perspective. आप जब किसी के लिए मतलब I am not demeaning people who work, it's with all due respect, but when I used to work as an employee एक ऐसा thought रहता था यार काम हुआ कि नहीं चलना सैलरी तो आना ही है. Now on the other side of the world जब आप बिजनेस कर रहे हो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज पीपल लुक अप टू यू. लिटरली लोगों के घर चलाते हो आप. तो अगर आपने एक गलती की तो यू कैन नॉट पास ऑन दैट हीट टू योर एम्प्लॉयज और टू योर पीपल हु बिल्ट दैट फॉर यू. करेक्ट. तो वो रोकना, ये कंट्रोल कैसे लाना उनके तरफ पर्सपेक्टिव. करेक्ट. जैसे मैंने बोला आपके पास ऑप्शन नहीं है. यू कैन नॉट just plain simply be short tempered. The biggest change that I've seen in me is I've been very calm throughout this entire rough sea. जैसे मैंने पहले बोला I still have a case filed against me, not legally, but people try to threaten me. But I don't make. क्या आपको कभी मुझे देखे लगा है कि I have a case worth 50 lakhs? करेक्ट. नहीं करेक्ट. But initially जब आया तब I think पूरे एयरक्राफ्ट को पता चल गया होगा कि कुछ हुआ है मेरे लाइफ में. देन आई रियलाइज यार ये नहीं चलेगा. मतलब जब मैंने कुछ गलत नहीं कर रहा है तो आई डोंट थिंक आई शुड फियर द वर्ल्ड. करेक्ट. उस पे भी बात करेंगे. वी विल ट्राई टू गेट टू दैट कि हाउ टू बी अनअफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट. बट बिफोर दैट व्हेन वी आर स्टिल ऑन द टॉपिक ऑफ बिजनेस, वत्सल भाई, आई ग्रू अप इन एन एनवायरनमेंट वेयर आई कुड सी कि मनी को लेके जो बिलीव्स है वो काफी स्ट्रांग है लोगों के. इन जनरल एनवायरनमेंट देखेंगे, सराउंडिंग देखेंगे, पैसा बुरा होता है, ये सब यू ग्रो इन दैट एनवायरनमेंट. एंड आई बिलीव दैट वी आर क्लीन स्लेट्स. और जब अपन बड़े होते हैं और अपन ने ये सब सीखा कि पैसा बुरा होता है, ज़्यादा पैसा लालच होता है, यू आर वेरी ग्रीडी इफ़ यू वांट मनी. अगर छोटा सोचूं, ये जितना ज़रूरत है उतना ही कमाने का सोचूं. तो ये जो मनी बिलीव्स है एज अ बिजनेस ओनर, नाउ आई थिंक दैट इट रेस्ट्रिक्ट्स मी. फीस कलेक्शन के टाइम पे थोड़ा हेजिटेशन होता है. अपना ही पैसा है, अपन ने काम किया है, उन्होंने डिफॉल्ट किया है, बट मेरे को मांगने में शर्म आ रहा है. तो ये जो चीज़ें हैं अबाउट मनी, why do you think money is a very less talked topic? और इतना हेजिटेशन क्यों है पैसे के अराउंड? यार आपने एक चीज बोली कि फैमिली सिखाते हैं जितना जरूरत है उतना कमाओ. व्हाट इज जरूरत? कैन यू डिफाइन व्हाट्स योर जरूरत? रोटी, कपड़ा, मकान, उसके ऊपर थोड़ा लग्जरी जरूरी नहीं है. उसका आप जॉब भी करके कर सकते हो. इट्स नॉट फैमिलीज मिस्टेक. नाउ विद टाइम ट्रेडिशन चेंजेस. हमारे जो पहले के जनरेशन थे, फॉर देम व्हाट मनी मेंट वाज 2 टाइम का खाना, कपड़ा, दैट्स इट. बिकॉज मकान उनके पहले के जनरेशन ने बनाया हुआ था. फॉर अस इट इज द थर्ड जनरेशन वेयर वी स्किप वन. मकान भी है, खाना पीना भी है. करेक्ट. इन टुडेज वर्ल्ड आपके पास रेडीमेड है सब. करेक्ट. तो व्हाई वुड यू नॉट वांट टू स्टार्ट समथिंग एंड गो 10x? करेक्ट. इज माय पर्सनल बिलीफ. करेक्ट. ये बिलीव बना, वी वांट टू गो 10x नाउ. बट कहीं ना कहीं पैसे को लेके उनके जो फियर्स हैं, एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट फैमिली, इन जनरल योर फ्रेंड सर्कल या जहाँ पे भी आप एनवायरनमेंट में बड़े हुए, अब वो सर्कल में वैसा है कि सब लोग बड़ा नहीं सोचते. There are many friends of mine school time के we are happy with 30K a month, 40K a month, and they are living good life, happy life. तो nothing to demean them, but वो environment से निकलना और वहाँ से वो conditioning, अभी जैसे 27 साल हो गए मेरे को भी, तो वो conditioning तो है ही पीछे. तो उस कंडीशनिंग को रीलर्न करना भी वो कैसे करेंगे आप? How will one do that? Relearn is with time. I would say with experience. The common trait between the two of us is we got responsibilities on our shoulders at very early age. मेरे लिए ज़्यादा early नहीं था, but comparatively as compared to people of my age, when they were doing their masters, I started my job. The same question, why? Because मुझे पैसा कमाना था. करेक्ट. एंड ये जो मैं तो नहीं मानता, बट लोग जो बोलते हैं यू शुड अर्न मनी टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, दैट्स क्रैप. कोई पैसा सोसाइटी को कोई नहीं देता. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. लोग पहले अपना ही भरेंगे. करेक्ट. एब्सोल्युटली. एंड यू हैव टू बी मीन, नॉट टू द पीपल बट इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी. कमाना है, खत्म. राइट. बट वो जो गिल्ट आता है, वो गिल्ट को कैसे हैंडल करेगा कोई आदमी? वो गिल्ट क्यों आता है पहले? डू यू हैव एन आंसर फॉर दैट कि वो गिल्ट क्यों आ रहा है? क्यों आएगा उसका बेस्ट आंसर आपके पास ही होगा.
बट गिल्ट नहीं आना, क्यों नहीं आना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ. दैट्स योर हार्ड अर्न मनी. ऑफ कोर्स पीपल माइट हैव सेवरल रीजंस टू डिफॉल्ट ऑन देयर पेमेंट्स. लाइक अभी हम भी बिजनेस में है, हमारे क्लाइंट्स बहुत टाइम नेट 30 की जगह नेट 45 में देते हैं. बट आई कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम फॉलोइंग अप बिकॉज दैट्स हार्ड अर्न मनी. So that's where you change your perspective when you talk to that person and understand why is there a delay. And if it's a genuine delay, you give time. But if you feel the person is beating around the bush, you have all the rights to confront and ask कि भाई ये मेरा बनता है इतना दे दे. Right. That's legitimate business. Correct. Learn to say no. First step. अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट, अभी जैसे आपने मेरे साथ काफ़ी टाइम से काम किया, आपने शायद डिफॉल्ट किया, मैंने आपको कन्फ्रंट किया, नाउ यू फील कि यार ये अचानक से कैसे चेंज हो गया, आज मैंने आपसे कुछ सीखा, नाउ आई विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस, आई विल स्टार्ट चेंजिंग. तो अब तक तो जो एक पैटर्न चला, अब एक नया पैटर्न सेट हो गया, अब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगे. फियर ना पैसे का नहीं है, फियर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का है एंड लुकिंग बैड का है. तो ये जो लुकिंग बैड है, हाउ डज दैट लुकिंग बैड से आपको क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ. For me, you are the worst person on this planet. What changed in you? अभी आप दूसरों को जाके बताओगे ना कि ये तो तो उससे ऐसा आपको है. क्या फर्क पड़ता है? तो मेरा क्लाइंट बेस खराब हो गया ना. जैसे अगर आपके साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, You attract people of the same spectrum is what I believe. जिसको आना है कैलिस्थेनिक्स करने वो आपके पास आएगा या आएगी ही. मैं अगर जाके किसी आपके कोच को बोलूँ पुनीत ने ऐसा किया तेरे बारे में ऐसा बोला, वो ऐसा जरूरी नहीं वो छोड़ के चला जाएगा. एंड वी सीन केसेस जहाँ पे कोच गए उससे फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा है. मैं भी फ्लोर पे हूँ, आप भी फ्लोर पे ही हो. तो कीप दैट स्पेक्ट्रम असाइड. जो दुनिया आपके बारे में सोचती है वो भी आप ही सोचोगे. तो लेट देम डू सम वर्क बाय थिंकिंग अबाउट यू. क्या बात. यू कैन नॉट कंट्रोल समवन एल्सेस परसेप्शन अबाउट यू. स्टॉप डूइंग दैट. सो इट्स बेस्ट टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज वे इट इज. आपको पैसा चाहिए, आपको टाइम पे चाहिए, आपने वो बात शेयर किया एंड जस्ट लेट देम डू द टॉकिंग, राइट. एंड पीपल डोंट हैव द हैबिट ऑफ हियरिंग नो. सो आप अगर किसी को फर्स्ट टाइम बोलोगे यार नहीं चलेगा प्लीज टाइम पे दे दो, दे माइट गेट ऑफेंडेड बट इट्स ओके. यू आर ब्रेकिंग द आइज, यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग. यू आर आस्किंग फॉर मनी, सिंपल. इफ दे गो समवेयर एल्स आई डोंट थिंक दे विल बी इवन गेटिंग दैट टाइम. सीधा निकाल देंगे. करेक्ट. वत्सल, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि एटलीस्ट इस पॉइंट तक भी अपन ने इतना वैल्यू डिलीवर किया है, दिस काइंड ऑफ पैटर्न, एंड मुझे भी काफी इनसाइट्स मिले हैं अभी. तो समवन हु इज विद द सेम बैकग्राउंड एज अस और कोई ये सुन रहा होगा तो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू मिला होगा एंड ही विल बी वेरी हैप्पी राइट नाउ. सो आई थिंक दिस इज गोइंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन. यू कैन जस्ट कीप शेयरिंग. यू नो वन थिंग अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, आपसे बिजनेस का बहुत सारा बातें होने वाला है, ठीक है. आई लव व्हेन पीपल टॉक अबाउट बिजनेस. सही. वन थिंग दैट कम्स विद बिजनेस इज नेटवर्किंग. कि आपको लोगों से, लोग ऐसा बोलते हैं कि नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट. तो आई नेवर अंडरस्टूड दैट, क्योंकि आई हैव बीन, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी मीनिंग लेके आपसे आ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चीज है दैट आई वांट फ्रॉम यू एंड देन आई एम फेकिंग दैट फ्रेंडशिप. तो वो मेरे को एक थोड़ा स्टॉपेज देता है. यार आई डोंट वांट टू बी फेक. वो इंसान मेरे को ठीक नहीं लगता, लेकिन ही हैज द पावर टू हेल्प मी. तो उसके पास ऐसा कोई रिसोर्स है जो मुझे मदद करे. तो मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, फिर भी मैं उसके पास जा रहा हूँ. सो इट डजंट फील राइट मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ माय वैल्यूज. बट स्टिल नेटवर्क तो करना है. तो क्या करेंगे अभी, कैसे? नेटवर्क कैन नॉट बी सिलेक्टिव. जो आपने बोला नेटवर्क इक्वल्स टू नेटवर्थ इज 100% ट्रू. आई विल गिव यू माय एग्जांपल. बिजनेस मेरा चालू हुआ, 2 महीने में बंद हो गया बिकॉज ऑफ द केस एंड ऑल. क्या हुआ? आई गॉट अप अगेन ऑब्वियसली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. बट हाउ डिड इट टेक लेस देन अ ईयर टू बाउंस बैक? Network. The people I knew for a very long time, they believed in me, they trusted me that Vatsal is a legitimate person and something did not turn out well with him and the scenario. So let's forget that and let's start fresh with him. वही जगह पे अगर मैं बैठा रहता कि यार ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, स्पेक्ट्रम नहीं मिलता तो शायद आज मैं कुछ कर ही नहीं पाता. तो नेटवर्क इज दैट नेटवर्थ वेयर, like we spoke about, say we speak about investment. Now being a startup founder, I've reached out to almost 30 investors till now, faced 3 rejections and proudly faced them with whatever reason. But now I know for a fact if I have to help someone, I have a list of people to reach out to directly and not their company's website where they can seek investment. That's net worth.
सो नेटवर्क में मतलब जैसे व्हाट इज द अप्रोच, जैसे मेरे को भी आपसे काफी कुछ सीखना है, बट मेरे में फियर है कि यार वत्सल भाई क्या मतलब करेंगे नहीं करेंगे, या ही जस्ट शू मी अवे, या वो मेरे को थोड़ा डीमीन करेंगे। तो मतलब नेटवर्किंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पॉइंट? टॉक खत्म, जस्ट टॉक टू पीपल। टॉक अबाउट व्हाट? इवन माई फैमिली टेल्स मी ये बंदा वॉचमैन से लेके रिक्शा वाले सबके साथ बात करते हैं, दैट्स नेटवर्किंग। नाउ इन टूडेज टाइम्स आई टेल यू नेट यू जस्ट टॉक, नॉट नेसेसरी कि आप किसी के साथ बिजनेस का ही बात करो। लेटेस्ट एग्जाम्पल, अभी आई वॉज कमिंग बाय ऑटो एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम, यार आज इतनी बारिश हो गई, नवरात्रि, पीपल विल गेट अफेक्टेड। दैट्स हाउ वी टॉक फॉर 10 मिनट्स एंड वाइल आई वॉज गेटिंग ऑफ ही टोल्ड मी, भैया जी पता ही नहीं चला 10 मिनट चले गए। कोई कोई कस्टमर कितने अकड़ू होते हैं, उनका काम हो गया तो निकल गए। दैट्स नेटवर्किंग। यू इट डजेंट मीन कि वो नेटवर्क मेरे नेटवर्थ में कनेक्ट होगा, बट यू टॉक टू पीपल, नॉट ऑब्वियसली डोंट टॉक नॉनसेंस टू पीपल, बट जस्ट टॉक टॉक विद एन इंटेंशन ऑफ व्हाट, मतलब क्या बातें करो विद एन ओपन हार्ट, very just to simple. understand, Just is to it understand a human. curiosity? Now for example, there are a lot of friends who call me in the middle of the night when they need help to talk to people, like using my connections, and when I call them वो लोग बोलते हैं कि हाँ वत्सल भाई बोलो ना। So that वत्सल भाई बोलो ना has not been an overnight thing. It's when you keep on talking to that people. Latest example, I'm only giving my example so that you can correlate. I went to a jungle safari with my wife, एंड वहाँ के गाइड के साथ इतना अच्छा फ्रेंडशिप हो गया कि नाउ आई डोंट हैव टू टॉक टू पीपल अबाउट दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट। दैट गाइड ही कॉल्स मी वंस अ वीक, एवरी वीक ही कॉल्स मी टू वंस एंड ही टॉक्स टू मी फॉर ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स, बिकॉज ही सॉ दैट आई हैव एन इंटेंशन टू लर्न अबाउट द फॉरेस्ट, दैट लाइफ इज डिफरेंट। एंड नाउ वीव कम टू अ पॉइंट वेरी टेल्स मी, आप बस आओ, आपका डिस्काउंट वगैरह मैं देख लूंगा, आप आ जाओ, आप बहुत अच्छे कस्टमर थे। Now you build that over time. You don't see a barrier between you and someone else कि आपको बात करना चाहिए या नहीं, क्यों? Even if that person is of a lower stature, you talk to him. Simple. You never know where will that person be useful to you. बट ये इसमें ये मतलब ही नहीं है क्या कि मतलब ही क्यों मैं है? कि वो शायद कब काम आ जाए इसके लिए बना के रखता हूँ, ये वो वाला एक थॉट mindset। है। मैं ये थॉट प्रोसेस से बात नहीं करता कि यार ये गाइड मेरे को डिस्काउंट देगा, ये रिक्शा वाला नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो और कम करके देगा। मैं बात इसलिए करता हूँ बिकॉज द पर्सन फील्स हैप्पियर दैट द पर्सन इज बीइंग हर्ड, एंड आई फील हैप्पी बिकॉज इट्स आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ टू बी एन ओपन ह्यूमन। Like anyone, even you talk to your people on the floor, I talk to everyone. In spite of being known as a very silent guy, still I talk to कोई people. नहीं बोलते साइलेंट आपको, सब आपके ही लोग मुझे बोलते हैं अच्छा भाई आप चुपचाप एक्सरसाइज करते हो। मेरे को पता है बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, वर्किंग ऑन योर बिजनेस, यू वर्किंग ऑन योर मॉडल, Business is, see that मॉडल्स या व्हाटएवर, यू आर ऑलवेज लुकिंग, यू आर ऑलवेज ऑब्जर्विंग। I talk to people. That's how you make friends. Because in today's world, you cannot afford to make enemies. You never know what will go wrong when. And people are very short tempered. इससे अच्छा हंसो, दोस्ती करो, make friends, as much friends as possible. Lovely. Vatsal bhai, with the concept of networking, there also comes the concept of hesitation to ask for help. जैसे आज मालूम है मेरे को कि आपके पास एक कांटेक्ट है जो मुझे शायद मदद करे, बट मेरे अंदर वो फियर है कि यार मांगू कैसे, हाउ कैन आई, मतलब अगेन लाइक द सेम थिंग। तो आस्किंग फॉर हेल्प वाला, डू यू हैव एनीथिंग फॉर दैट, व्हाट इज दैट हेजिटेशन? Like hesitation is why, because your mind tells you don't ask, शायद ना बोल देगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। ये हाँ। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, बट क्या इज्जत रह जाएगी क्या भाई? What is the worst that can happen? No. उससे ज़्यादा तो मार तो नहीं डालेगा ना। नहीं, फिर वो आदमी का आपको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है ना। कमिंग बैक टू द सेम थिंग, उससे आपको क्या, आपके लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या आपका जिम बंद होगा? नहीं। आपके लोग आपको बात करना बंद कर देंगे? नहीं। Will your life stop there? No. How will a person perceive you is not in your control. You just have to work. So अगर if you need some help from people and you have that people around you, just ask for them. फिर don't forget, don't wait for don't worry about the no. See, I am a firm and a staunch believer of God. I feel pity for people who are atheists because आएगा, उनका भी टाइम आएगा जब उनको बिलीव होगा भगवान है। मैं भी एक टाइम पे था जब मंदिर भी नहीं जाता था, इट्स अ फैक्ट। बट देयर कम्स अ फेज इन एवरीवन्स लाइफ व्हेन गॉड डजंट वांट बैड फ्रॉम यू, बट यू विल रियलाइज कि हाँ भगवान है भाई, वरना आज
जहाँ मैं हूँ वहाँ नहीं होता. And I have a habit of reading books, तो I learn a lot from books. You said that आप बहुत काम रहते हो, मैंने बुक से ही सीखा. The Calm Holy and Gita composed. or Ramayan. These are the books I read. I don't read books like Atomic Habits. Obviously book खराब नहीं है, but they will teach you on a different tangent, whereas our cultural books will teach you life values, which ultimately leads to you giving a very good life. So that's what I've learned. उसमें भी लिखा है like you cannot, you just do your work, do not control actions of others. काम कर, फल की चिंता मत. So why are you thinking about लोग क्या सोचेंगे? चलो मैंने सोच लिया कि पुनीत यार बहुत इगोइस्ट है कि मुझे जिम नहीं जाना है. क्या होगा? आपको फियर होगा यार, एक क्लाइंट गया, एक्स अमाउंट गया, तो उससे क्या हो जाएगा? आपका जिम बंद होगा? नहीं. मान लो 100 लोग ने ऐसा मान लिया कि पुनीत खराब है. पुनीत को तो पता है ना पुनीत अच्छा है, पुनीत के फैमिली को पता है. दैट्स व्हाट मैटर्स टू यू. वहां से फिर से खड़े होंगे. सही बात. लवली. बिजनेस के टैंजेंट पे वन मोर. Yeah, we can go on. आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जैसे स्टार्टअप का जो दुनिया है और ट्रेडिशनल बिजनेस का दुनिया है. ट्रेडिशनल बिजनेसेस रन मोर ऑन ट्रेडिशनल बुक्स, लिखना, रसीद देना, व्हाटएवर. स्टार्टअप का दुनिया ऐसा लगता है कि यार वो अलग ही, मतलब यू नो देयर इज अ बिग डिफरेंशिएशन. और वो डिफरेंशिएशन में आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर हम यहाँ के एनवायरनमेंट में हैं तो यहाँ के लोग हमको लेने को तैयार है नहीं है, या ये हम समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे. क्योंकि व्हाट आई अंडरस्टैंड इज बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए यू नीड अ प्रोप्राइटरशिप और एन एलएलपी और प्राइवेट. ये सारा टर्म्स मेरे को समझते हैं, बट देन इतने बड़े बड़े टर्म्स आ जाते हैं ना. टर्म्स मेरे को याद भी नहीं है फिलहाल. बट अभी जैसे शार्क टैंक अगर हम देखेंगे, सो मेनी टर्म्स शूट्स अब एबिटा ये वो. तो हाउ डज वन जिसके पास एक आइडिया है, who has value but he doesn't know how to grow a business, स्टार्टअप क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं मालूम, अब वो क्या क्या करे, स्टार्ट कैसे करे? यार एकदम लेमन लैंग्वेज है कि आलू बहुत ट्रेडिशनल सब्जी है, बट उसमें आप मसाला डाल दो तो बन जाता है अचारी आलू. सिमिलरली यू टेक टू नुआंसेस ऑफ बिजनेस, वन इज अ ट्रेडिशनल, मिक्स इट विद द मॉडर्न ट्रेंड. एग्जाम्पल ऑफ EBITDA या PBT PAT, आपको क्या लगता है? मुझे मालूम था, मैं तो साइंस लिया था. I did not have accounts as a subject, but shows like Shark Tank they teach you. जो पुराने ज़माने में लोग गल्ले पे बिल बनाते थे वो आज एक्सेल शीट में आ गया है. There is no difference, just पेपर की जगह एक स्क्रीन आ गया है. पुराने ज़माने में लोग बोलते थे मुझे 1 का 2 करना है, that's your PAT, that's your tax, like profit. पुराने ज़माने में जो लोग बोलते थे कि यार मैंने 10 रुपये डाले धंधे में और उसके सामने मुझे आ रहा है 12 में से मेरा 2 खर्चा हो रहा है तो बच रहा है मेरे पास 1, तो वो हो गया आपका नेट रेवेन्यू. तो है चीज़ें वही है. वीव अडेप्टेड ग्लोबलाइजेशन, इसलिए वो टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई. इफ़ यू लुक एट एक्चुअल फैमिली बिजनेसेस तो वो लोग अभी भी पुराने टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दे आर डूइंग बेटर देन द सो कॉल्ड यूनिकॉर्न्स हु आर स्टिल रनिंग इन लॉसेस. करेक्ट. नहीं स्टिल, बट अभी जैसे मैंने बताया ये मेरे को समझ में आता है कि डिफरेंस है, बट एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस ही हो रहा है, तो सेम चीज़ है, बढ़िया. बट स्टिल स्टार्टअप का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अलग है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट अलग है, तो वो माइंडसेट शिफ्ट समझता है, साइकोलॉजी शिफ्ट समझता है. तो साइकोलॉजी शिफ्ट अभी जैसे मेरा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड होगा, बट तो मुझे आई वांट टू स्टार्ट लीडिंग अ स्टार्टअप, बट आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट. तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? क्या लाइक इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर इंटेंशन. अभी जैसे इफ यू वांट टू लीड अ स्टार्टअप मींस व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू स्टार्ट अ कंपनी. पैसे कम, मेरे को 100 करोड़ रुपए आज कमाना है, मेरे पास एक आइडिया है, वैल्यू है, अभी उसको बड़ा बनाने का. सी 100 करोड़ कमाना आज के ज़माने में बहुत ईजी है. आई जस्ट रेड अ न्यूज़, एक कंपनी ने 1 महीने में $45 मिलियन का रेवेन्यू कर लिया बिकॉज ऑफ फंडिंग, एंड 3rd मंथ में कंपनी बंद हो गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेटेड नंबर्स. तो आप इफ़ यू सेट अ टारगेट ऑफ 100 करोड़, एड अ टाइम टू इट, इज व्हाट आई हैव लर्नड कि आपको 100 करोड़ कमाना है. बट क्या 100 करोड़ ये बिजनेस लाइन में ईजी है इन 6 मंथ्स? इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ दिस लाइन. ओके. इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई बिजनेस, 100 करोड़ कमाना ईजी है. लोगों ने कितने टाइम में किया है? 6 महीने में भी किया है. बट मुझे पता है कि वो 6 महीने में करने के लिए उनके पास पीछे 50 करोड़ पंप करने वाले लोग थे. तो आपके पास पंप करने वाले हैं तो यू हैव टू डिसाइड अ टाइमलाइन, एंड देयर इज नथिंग बैड. आपको टाइमलाइन है 100 करोड़, काम करते जाओ. ये मैंने सीख लिया है, कुछ भी हो जस्ट वर्क रिलेंटलेसली. बट कुछ भी हो. चल रहा है आपका
यू आर गिविंग मी अ सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है सब बढ़िया, बट मुझे पता ही नहीं है कि अभी करूँ क्या। जैसे जैसे आपको नहीं पता है तब लाइट चालू करो. हम्म, यू आर इन अ डार्क रूम, हम्म, यू डोंट नो वेयर द स्विच इज. व्हाट डू यू डू? मान लो ये रूम में अंधेरा है, आप एंटर हुए, आपको लाइट चालू करना है, आप क्या करोगे? लाइट करेंगे उसमें। लेकिन कहाँ आप जाओगे ना, यू फील द वॉल, यू गो टुवर्ड्स द स्विच. दैट्स हाउ यू लर्न. बट फिर जैसे अभी मेरे को भी सीखना है, तो कोई मेरे को क्यों सिखाएगा? आपका अपना Exactly. लाइफ है, किसी और का अपना लाइफ है, किसी और का अपना, सब अपने अपने दिमाग में ऑक्यूपाइड है। तो अभी मेरे को सीखना है, मैं वो उसका क्या फायदा होना है मेरे को आप गलती करो ना, आप सीखोगे कैसे नहीं? मैंने भी गलतियाँ करी, बहुत हेवी प्राइस 50 lakhs इस वजह गलती करी ना मैंने भी, जहाँ मैं डर गया तो मुझे पता चला. तो अगर कोई सिखाने वाला नहीं है, खुद से करो। कोई नहीं सिखाएगा. अगर नहीं, ये दिस लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज ब्रूटल ऑनेस्टी. कोई सिखाने वाला नहीं है आपको. करना द है तो ओनली खुद से पर्सन टू टीच यू इज योर सेल्फ एंड गॉड. आई एम अगेन एंड अगेन forcing and pressing on the word God because I know the existence of God. करो। What makes you say that? You see, how much ever I tell you, or how much ever I tell a person who's in front of me, until unless you don't believe. मान लो आप एक खाई पे हो, like you are at a cliff, you're at the edge, the world is pushing you, you fall down, you will give up, you will just close your eyes, you know death is around the corner, and the next day you get up and you realize there was something that saved you. What do you think? Will you believe in? Correct. So ऐसे instances सबके लाइफ में आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे. Right. It's just about grabbing them and realizing by. मेरे सिचुएशन में तो ऐसा था, मुझे पता था खत्म है लाइफ. लाइक आई हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर एंड देयर इज अ एंड रोड जहाँ पे पीपल आर स्टैंडिंग विथ स्वॉर्ड. आई हैड गिवन अप. गॉड गेव मी इंडिकेशंस, मैं हूँ. It paved the way for me. तो आपका इंटेंशन इज वेरी क्लियर, यू वांट टू अर्न 100 crores एंड दैट इज अ वेरी गुड इंटेंशन. यू आर नॉट फेकिंग इट आउट, मुझे 100 करोड़ कमाना है, दुनिया को देना है. मत देना, कुछ नहीं होने वाला. हाँ, आई एम नॉट सेइंग यू डोंट हेल्प पीपल हु आर इन नीड. दुनिया को देना मतलब ये नहीं होता. दुनिया को देना मतलब हेल्प पीपल हु आर इन नीड, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दैट फेज. करेक्ट. यू ऑलरेडी हैव दैट ऑन योर प्लेटर. आपके पास इंटेंशन है, चालू कर दो. बिगेस्ट थिंग यू विल फेस इज फेलियर. दैट्स द बेस्ट टीचर. बहुत बढ़िया. आई थिंक बिजनेस के लेवल पे काफी कुछ कवर किया है. When you say you are a person of God, you have faith. We can also talk on the concept of happiness. You usually ना अपना पॉडकास्ट शायद 30 मिनट का रहता है, बट आई थिंक ये लंबा होगा तो चलेगा. बहुत बहुत वैल्यू मिलेगा लोगों को. तो we don't want to put we don't want to put a time restraint here. What do you think about happiness and what is happiness ideally? क्योंकि eventually सब उसी के पीछे है. What I understand. तो आपके डेफिनेशन में हैप्पीनेस क्या है? Anything that gets a smile on your face, whether it is 100 crores or whether it's your mom smiling in front of you. But there See, are so it's an many index. factors for me then. जैसे अगर मैं मेरा भी देखूं, so many factors bring me smile, but there are so many factors which also don't bring me smile. तो ये तो unstable happiness हो गया, but I want Exactly. stable It's an happiness. index. See, there cannot be stability in life. ECG जो होता है, you ask any doctor if that goes stable, person We are is dead. dead. Right. To understand happiness, you need sorrow. Correct. तो जब तक आप सौरव बहुत आ गया मेरे लाइफ में. तो ही आपको हैप्पीनेस का वैल्यू समझेगा. हाँ, अभी हैप्पीनेस क्या है? एंड आपके लाइफ में जो सौरव है, शायद आपसे ज़्यादा कोई होगा जिसके लाइफ में 10x सौरव, उससे ज़्यादा 100x. सो यू कैन नॉट से मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा सौरव है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है. लाइक टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ काजू कतली, प्लीज ईट करेला इज व्हाट आई वुड से. तो जब तक आपके लाइफ में वो अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, सो यू शुड बी हैप्पी दैट वो स्टेबल नहीं है. इट्स अ साइन कर्व. So when you are at the peak of happiness, you have to be ready for some days when you have to see peak sorrow. That's how you enjoy life. आपके कंट्रोल में है कुछ चीजें. Exactly. जो नहीं है उसको छोड़ दो. Right. Lovely. What do you think about being the man of the house? मतलब जैसे अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हम दोनों ही एक ऐसे जर्नी में है या फेज में है वेयर अब तक कोई और लीड कर रहा था. धीरे धीरे जवाबदारी हमारे शोल्डर्स पे आ रही है. ये ऑल्सो मैरिड रिसेंटली, आपकी शादी में भी आया था. ठीक है, अभी ये नहीं बोलना चाहिए. सो एक और पर्सन आया जिसको आप अकाउंटेबल हो. I might get married. So eventually we are going to be the lead of the house.
what is the caretaking things that we need to do, या what is the mindset shift? अभी serious होना है या क्या? What क्यों is it? सीरियस होना है यार? लाइफ, a man's life is full of responsibilities, I would say. Not that a woman's life is not, but जब it talk traditionally over the years, like you said, I think from the time humans existed, it was a thing that man would run the house, bring in money, and the woman would be responsible to turn that concrete into a home, a happy home. Obviously things have changed with time, people have evolved, but आज की तारीख में भी if you see, men have that art of pretending to be happier even if they are not. Correct. And that's the best trait you get. But वो worst भी है ना, कहीं ना कहीं आप वर्स्ट अंदर ही नहीं है, आप सत्ता या सी वर्स्ट तभी है जब आप किसी के साथ ओपन नहीं रहे हो. बट आई हैव सीन दैट यार लड़कों की ज़िंदगी बहुत सिंपल है. मान लो मेरी लाइफ में दुख आया, 2 दोस्त को फ़ोन किया, मिले, गाली दिया, ख़त्म हो गया. वी फॉरगेट देयर. सो दैट्स द थिंग. दैट्स वाई मैंने अभी कहीं रिसेंटली लिंक्डइन पे एक आर्टिकल पढ़ा दैट इन द लास्ट 65 या 66 ईयर्स लिखा था द रेशियो ऑफ पीपल डाइंग ऑफ हार्ट अटैक जिसमें मैन वॉज द लीस्ट, like women were at the peak. It was between two genders. And the psychologist rightly said that men, they pretend to be happy and when they are not, they expel it out. So being the man of the house should be very a moment of pride for everyone कि यार अच्छा है. There was a time when your father used to hold your hand and take you to school. Now it's your time to hold his hand and tour him around the globe. So why not? एक time था उन्होंने लिया, now you've taken. सही है, सही. Lovely, that's really good perspective. But ये जो responsibilities का भार है, sometimes ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई चीज़ नहीं करनी हो या it is not aligning with what you are looking for yourself. आपका एक पार्टनर आएगा फ्यूचर में, वो पार्टनर का एक अपना ब्रेन रहेगा which creates a lot of influence on you, right? Then there is another set of things जो आपने कभी सोचा हो. इन सबको मैनेज करना, आपको इनको भी संभालना है, इनको भी संभालना है. How does that work? Adaptability. See, if you be like water, obviously it is better said than done. मैं भी कोई संत आत्मा नहीं हूँ. Things were initially difficult because you get a human being into your house. Imagine the plight of that girl who's getting married and shifting to a new house. We are not going to a new house. She's coming to our house. So it's the ratio of 90 to 10. And if we talk about 10% being very भारी, then imagine that 90%. ये आप सोचोगे लाइफ इजी हो जाएगा. लवली सेड. आई थिंक हर आदमी अगर ऐसा सोचे और ये पर्सपेक्टिव खाली उनके ध्यान में आ जाए एटलीस्ट कि भाई वो अपना पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस, पूरा घर छोड़ के आपके पास आई है, तो आपके लिए शायद उनको अकोमोडेट करना, उनके लिए प्रेजेंट रहना कितना बड़ा काम है एज अ मैन. आई थिंक दे विल रियलाइज. और फीमेल्स, आई थिंक फीमेल्स डू हैव एन एनर्जी जहाँ पे उनको दिखता है कि कोई उनके लिए एफर्ट ले रहा है. फोरसी, दे हैव अ वेरी गुड ट्रेड ऑफ फोरसीइंग. तो अगर उनको सिर्फ उतना ही समझ में आए कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए ही इज देयर एंड ही इज अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन दैट आई एम गोइंग थ्रू, आई थिंक दैट विल इज सफिशिएंट इनफ. दैट विल सफाइस योर हैप्पीनेस इंडेक्स. या सी देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू feel or you start questioning yourself about getting married, but it's okay, it's a normal trait to question yourself. But then when you look at your wife's face, you realize no, my decision has always been right. See, obviously there are two sides of a coin. If there are conflicts happening every day, there's something wrong. But if there are no conflicts happening every day, there's definitely something which is going wrong. Oh, okay. Yeah, because see, there are दो mind है यार, like a male and a female, they are two different minds. Conflicts होगा, sit, resolve, and don't sleep without resolving. Correct. Period. हाँ, ये मैंने भी काफी, and I think I do apply it on my friends or whatever. Friends के साथ और life partner के साथ apply करने में बहुत yeah, yeah. नहीं, I understand. Then I will podcast you. I will host you. That will be fun. नहीं, सही. बट फिर भी अगर दो तीन चीजें अगर आपको शेयर करनी हो अबाउट द काइंड ऑफ कल्चर वी हैव अबाउट रिलेशनशिप्स, डेटिंग एंड देन मैरिज, डू यू थिंक अभी फिलहाल एक ऐसा फेज है जहाँ पे रिलेशनशिप्स आर नॉट होल्डिंग दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ और दैट काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी? दे आर वेरी फ्रेजाइल. हाँ ना, तो मतलब कुछ हो गया एंड दे जस्ट ट्राई टू, तो ये इसको कैसे डील करेंगे? हाउ See, there is a shift in mindset, all thanks to the westernization and the apps that are available in the market these days.
आप अपने पहले के जनरेशन्स को देखो, लाइक आई हैव अ ग्रैंडफादर हु इज 92 राइट नाउ. जब whenever I see him I realize इनके टाइम पे, या forget grandfather, even in our father's time who entered into their early 60s now, like on the verge of entering their 60s, like my father, उन लोग के ज़माने में ये थॉट ही नहीं था कि झगड़ा हुआ चल छोड़ देते हैं. लाइक दे हैड अ वेरी स्टबन थिंग, झगड़ा हुआ मारा मारी हुआ साथ में ही रहेंगे. मारामारी इन आर लैंग्वेज मारा मारी इन द सेंस कि यार जो हम लेमैन में बोलते हैं, अभी जैसे बहुत सारे लोग डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरे हैं, लोग नहीं, फीमेल्स, बट देयर हैज बीन अ complete shift in tangent where the female, instead of being at the receiving end, she's turned the guy, like the animal, into a man. How can you do that as a human? But अभी के टाइम पे कैसा है, even if you have different opinions, चल अलग, let's call it off. करेक्ट. And ये सब आया है वेस्टर्न देश माल. करेक्ट. वैसे मैं व्हाट मेरे को ना इतना भी, जैसे आइडियली जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ यहाँ पे फिनिश होना चाहिए था. चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. हाँ, बट नहीं, मेरे को काफी, यू हैव टाइम? ठीक. काफी चीजें और मेरे को आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट. एक पॉइंट आया था दिमाग में, निकल गया. लिखे रखो सर. क्या था? Human mind. It was about relationship. बहुत बढ़िया पॉइंट था आई थॉट, बट वो बताने के चक्कर में निकल. I think you're getting married soon is why you need consultation. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. We are ready for a pull-up challenge. चलो ठीक है, आएगा तो बताऊंगा. Yeah, relationship बहुत vague topic है honestly. Vague? क्यों? Vague. For everyone, relationship has a different point of view. Like I feel very old. I am just 30, okay? But when I talk to people who are 23, 24, मुझे ऐसा लगता है यार मेरा mindset ऐसा है 50 साल का बुढ़ा हूँ मैं. Because for them, getting married is a far-sighted thing. उनके लिए शादी उनको करना ही नहीं है. क्यों? They are not ready for that responsibility of being with one female under the same roof. And But my I think mom it is always a taught me sense that. of power यार, कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी उनको नहीं लेनी है कि भाई मैं एक लड़की के साथ या एक लड़के के साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकती या रह सकता, शायद बिकॉज मैं कंटाल जाऊंगा. बिकॉज पीपल हैव चेंज द परसेप्शन ऑफ रिलेशनशिप और मैरिज इनटू अ थिंग कॉल्ड, क्या था वो, सिचुएशनशिप, वेयर यू बिहेव एज पर योर मूड और द सिचुएशन, व्हिच इज अगेन वेरी रॉन्ग. करेक्ट. रॉन्ग, अभी रॉन्ग बोलना भी ठीक नहीं, वो अपना पर्सपेक्टिव है. खत्म. नहीं, वो आपके लिए रॉन्ग है. We are in a country where we are brought up with values. The only country left on this planet. So वहाँ पे ही wrong है. Like I have a very firm belief जो गलत है वो गलत है. करेक्ट नहीं, वो तो आपका है, ठीक है, बढ़िया. I have two questions for you now. I call these the magical questions. Ideally एक ही magical question we do, but it's not more like a question. It's something that you just do. There's one 18-year-old guy who's watching this who really wants to do something in his life. उसको बहुत inspiration मिला है, बहुत value मिला है. He's looking up to you, but just because he's not present here, he's not able to ask you anything. What is your part and what do you want to tell him? वो 18 साल का आपको अभी सुन रहा है. So please. If you want to do something good in life, number one, have values and ethics. Number two, have your boundaries set. And number three, be focused, irrespective of whatever happens. Even if there's a war going on between your country and someone else, be focused. Like to give you an example, अगर एक घोड़े को देखोगे, why does a horse run so fast in a race without changing its course of direction? Because of the blinder. Now when you take that blinder off, the horse will go haywire. If you see the horse in the wild, Right. So be like that horse, have your focused path. कुछ भी हो जाए, don't let the distractions distract you from your goals in life. Goal can be anything. 100 करोड़ कमाना है, गुजरात में शिफ्ट होना है, अमेरिका जाना है, करो जो करना है. Just don't get deviated from the path. एक पॉइंट आपने बताया, be focused. नहीं, have morals and ethics. वो आपने पहला पॉइंट बताया. सेकंड पॉइंट बताया Morals and ethics क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफाई किया 18-year-old. Because an 18-year-old is whatever that generation is called. What is it? Millennial or Gen Z or Alpha, Beta, जो भी है. And for an 18-year-old, it's very easy to get deviated. दूसरा मैंने बोला draw your boundaries. Boundaries again it's a topic that we can थोड़ा सा expand कर सकते हैं इसको.
how do you set boundaries with people and like नॉट विद पीपल, जनरली इन लाइफ. अभी जैसे अगर आपको ड्राइंग बाउंड्रीज इज अ डिफरेंट वे टू लुक एट नॉट डिविएटिंग फ्रॉम योर गोल्स. ओके ओके हाँ मतलब ये चीज मेरे काम की नहीं, ये मेरे को एंटर नहीं करना है इसमें बेसिकली. मतलब जो लेमैन में बोलते हैं ना, फालतू की बकवास में नहीं पड़ना है. डोंट बी दैट टिपिकल चिट चैट आंटी इन द सोसाइटी. काम से काम रखो, करेक्ट. खत्म सही करो. सही. एंड लास्ट मैजिकल क्वेश्चन दैट आई लाइक टू आस्क यू इज, एक तो था 18 year old जो आपको सुन रहा है, नाउ 800 people are watching, 800 crore people, everyone on the globe has their eyes on you. You have one mic, you have to address them. What is your address, like what do you want to share with them? Be resilient is number one. Now when 800 people, 800 crore means you're talking about the whole globe. Whole globe. When all of them watch you, you are definitely at a point in life, that's why they're watching you. So whatever you speak is going to be a matter of, you know, change for them. And whatever you speak will be out of experience. So फिलहाल मेरा जो experience है, one is resilience. कुछ भी हो जाए वो जिद मत छोड़ना लाइफ में आगे जाने की. That's it. And stay focused and grounded. When I say grounded, don't take your feet off the ground. आपके पास 100 करोड़ आ गए, आप फिर 5 करोड़ वाले को देखोगे भी नहीं. भगवान को 1 मिनट नहीं लगेगा आपको नीचे लाने में. करेक्ट. ग्राउंडेड. बहुत ही बढ़िया. वत्सल भाई, रियली वांट टू थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाल के आप आए, आपने अपना जर्नी शेयर किया, आपका विजडम शेयर किया, वट एवर यू लर्न, इतना ओपनली, इतना ऑथेंटिकली. सो इट्स, आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट क्वालिटी कि बिना छुपाए, बिना कुछ किए, जस्ट शेयरिंग थिंग्स एज इट इज. लोग बोलते शेयर नहीं करना चाहिए, कीप इट टू योर सेल्फ, बट आई फील शेयरिंग इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, राइट? कि अपना एक अपना यूनिक जर्नी है, वो अगर वही अगर प्रेजेंट नहीं किया तो क्या ही मतलब है. Flaunt about it. Simple. करेक्ट. सो आई थिंक वी कैन गो टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट के बारे में क्विकली एक ब्रीफ दे देता हूँ आपको. First part was all about Vatsal Shah and what he's lived, so that people can look up to him and learn from him. Second part is you've contributed today to come here at a Fit India Contributor campaign. तो ये campaign हमने run किया है because मैंने fitness में 7 साल निकाले. I've observed something. I've created a whole model. It's called Fit India model. वो मॉडल मेरे को ऐसे लोगों के साथ शेयर करना है who are aware in their life, who understand what it is, what it takes to create a model. You know, एक पूरा आइडिया क्या होता है, उसको कैसे लाइफ देने, उन्हीं लोगों को अपन यहाँ बुलाते भी, उनके साथ शेयर भी करते. एंड आई थिंक यू वुड बी रियली great human to understand that model, and I think you can then share your views on it. So are we ready for that? Can I do that? Sir, always ready. Lovely. So वत्सल भाई, आपने ये पूरा मॉडल समझा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट लिसनर. मैंने ये भी ऑब्जर्व किया दैट यू आर पूरा फोकस्ड है. ओके, आपका आई कांटेक्ट बहुत डरा रहा था मेरे को, ऐसा पूरा आंख में ही देख रहे थे. बट नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, द काइंड ऑफ अटेंशन यू गेव. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मॉडल? ये मॉडल को एज अ बिजनेस ओनर आपको It is really something that is ground breaking. मतलब लेमन टर्म्स में किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि कौन से एज ग्रुप के लिए इट इज द राइट फिट टू इंड्यूस एक्सरसाइज. पीपल थिंक एक्सरसाइज आराम से पहले कमा लेते, 40 के बाद कर लेते, एंड यू परफेक्टली कॉट होल्ड ऑफ इट. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड शो. बट इसमें बहुत लंबा जाता है. आपका क्या ओपिनियन है कि इससे क्या कर सकते हैं? सी द नंबर दैट यू सेड इज वेरी लेस. ये जो एज ग्रुप है 18 to 26 कॉलेज गोइंग पीपल है. सो इफ यू स्टार्ट partnering with colleges, I think there's no end to it, because then word of mouth will help you out. एक college आपको refer करेगा, दूसरा तीसरे में, so on and so forth. And I don't think it is just 26 year. Even if people start at the age of 27, 26 के बाद, it's better late than never. या वो तो है, of course. That is something that we want to do, but अभी तो फिलहाल वही लोग को सर्व कर रहे हैं जिनको समझ में आता है. नहीं, कि वो नीड क्रिएट करना भी एक टास्क है. नीड क्रिएटेड है, बस वो लैंग्वेज की जरूरत है. इज दिस लैंग्वेज? या सी, ऑल आई हैव लर्नड इज, आई विल टेल यू कि अगर आपको नीड क्रिएट करवानी है तो हिट द राइट स्पॉट. टेल समवन दैट ही इज ब्रूटली अनफिट, नेक्स्ट डे ही विल बी योर कस्टमर. सही है. आपने एक साल जिम भी एक्सपीरियंस किया, तो डू यू थिंक अभी जैसे मेरे दिमाग में ये पहले से ही था, इसको लेके मैं ऑपरेट करता हूँ, जो भी चीज़ें करता हूँ,
Do you think everything is aligning नीचे also? नीचे अपने जिम में और ये जो मॉडल, do Yeah, you think yeah, there is definitely. similarity? I don't know about others. At a personal level, I have felt, and I have already discussed in the earlier discussion with you. सही. We can conclude, but there is one important step that we have to do. आपने सर अपना टाइम दिया, आपका विजडम दिया, आपका अटेंशन दिया. You've been such a great guest with us. In return, we just want to appreciate, and we want people to recognize what it takes to just give 1 or 2 hours of your day in a running life, and then sharing with whole heart. It's not a small thing. I understand what character it takes to share your life. We want to give you this certificate which we want to write. आप खुद से अपना सर्टिफिकेट लिखो